हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। वेलकम टू इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। और आज के कार्यक्रम की तरफ जब आप आए हैं तो आपने दिन भर के मौसम का आनंद विशेष रूप से लिया होगा। इस तरह की धूप खिली हुई हमने जब आज न्यूयॉर्क में देखी है तो ऐसा लगता है कि इतना सारा बर्फ़ कहाँ से आ गया। अभी भी जब आप सड़कों से निकल रहे हैं तो बर्फ़ के पहाड़ आपका स्वागत कर रहे हैं और कई जगह लोग अभी तक अपनी गाड़ियाँ निकालने में बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। And even if it is easy for you to drive, it is difficult to find proper parking because a lot of space is taken still by the snow. Lot of space. Talking about space from the point of view of internet, then we are reminded of one big giant that has taken up the space of our attention on internet, and that is Facebook. And we feel that many people have started considering that internet means Facebook. इंटरनेट खोलेंगे, फेसबुक में जाएंगे, किसी को लाइक करेंगे, किसी की एंट्री देखेंगे और उनका जो अपडेट है उसका ध्यान रखेंगे। एंड Facebook and Mark is teaching us something, that is there is always scope to grow more, and that vision of expansion has become a part of Facebook in such a way that now they have acquired something more. और किसी भी चीज़ की कीमत कैसे बढ़ती है आप जानते हैं? आप उसको बढ़ाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप का यूज़ करने लगे और आपकी संख्या 450 मिलियन तक पहुंच गई तो 1.2 बिलियन लोगों द्वारा सब्सक्राइब किए जाने वाली फेसबुक कंपनी ने व्हाट्सएप को अपने में मिलाया और कितने पैसे दिए? Only $19 billion. $19 billion is indeed a big amount, but that is the strategy of Facebook to stay with us wherever we are. और हम जहाँ हैं वहाँ हमारे साथ रहते हुए अगर हमारा ध्यान हमारे साथ नहीं होता है तो what we have learned in India 2013 एक साल में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए 20,000 लोग मारे गए। इमेजिन, सिर्फ रेलवे ट्रैक पर हुई एक्सीडेंट्स के कारण 20,000 से अधिक लोग मारे गए। एंड इसके अलावा 1,63,000 से अधिक लोगों के ऊपर फाइन लगाए गए क्योंकि उन्होंने ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश की। यानी हमारी अगर आदतें ख़राब हैं तो हम किसी भी ख़तरे में पड़ सकते हैं। ये बात याद दिलाते हुए लोकसभा में जब इस बारे में जानकारी दी जा रही थी तो ये भी बताया गया कि ये फाइन लगा के 2013 में 3 करोड़ से अधिक 3 करोड़ 64 लाख रुपए फाइन के रूप में सरकार ने जमा कर लिए। Mentioning one more time about this issue which we have been discussing, and yesterday this news came as a shocking news for many of us that the killers of Rajiv Gandhi were to let go by Jayalalitha government, and the provision, as was mentioned, now on the request or at the initiative by the central government, Supreme Court has asked Jayalalitha government to maintain status quo for these 3 prisoners, Santhan, Murugan and Arivu. So far in March there will be some other development with respect to this issue. And before we really enter into today's Insight Tonight, where we have 2 wonderful guests who are going to be telling us a lot about how we can enrich ourselves with our relationship with food. But before I bring them to you, I also want to share one part of the news which connects us with the past in a very special way. Indians have done tremendously well in many areas, especially when we talk about computers. There are many doctors who have done very well, and some scientists have also excelled in their field. And there is a young scientist who is working with New York University, and he hails from Orissa, Rourkela. He's only 33. What has brought him to the news headlines
today is the new technique that he has offered to the world, whereby you can ascertain the age of fossils. So Rituparna Bose has helped us in finding out that there are fossils going back 400 million years. Past, present, and future, we are everywhere. And wherever we are, food is with us. And bringing taste and the culture of food from India with love, with passion, with commitment. There is one chef who has been written about in the New York Times, New York Post, many newspapers, and many television channels have covered stories on this gentleman who is the co-founder and chef at Tulsi. He has been a part of Devi, and there were Diwan Grill and Tamarind. And before I bring Hemant to you, I would also like to say that New York Times wrote about him that Hemant Mathur cooks like a dream. But his dream became true when he met someone who is also with him here today. So we welcome Surbhi Sani also. She is also a chef, and there is much more about her that we'll be sharing with you. But let us open the floor for both of you. And Surbhi, what do you think? What is it that takes to be a good chef? I think perseverance and passion in doing what you do. I mean, you have to enjoy cooking for sure. And being a chef is also sort of kind of like being an entrepreneur, because there are many aspects to the industry, like knowing how costly a product is, knowing where do you want to purchase your products, being aware of what's happening on a day-to-day scene in New York or in the world, being globally aware of what's new and trendy. So I think today's chef is like, it's not just cooking, they're doing many other things besides just being a fabulous cook and, being able to train an entire battalion of staff to work under them. Wonderful. So the way Surbhi describes what it takes to be a chef tells us that there is a global awareness that is a part of someone who is cooking in a kitchen. और हम लोग ऐसा सोचते थे कि कुकिंग करने वाले का पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ लगता है कि न केवल पढ़ने का लिखने का बल्कि many skills are required to be a successful chef. And let me also mention that Surbhi has her own company, Bittersweet New York NYC, and she's also expert in making pastries. Well, yeah, I've been a pastry chef for about, I'd say, 14 years now here, and my company specializes in doing wedding cakes and also doing all kinds of other cakes for special occasions. And then we have our own mithai line that we do especially for the holidays like Diwali and Holi and stuff like that. And then we also do Indian-inspired truffles. So all of it coming from my experience from doing pastries with Hemant and all the restaurants that he's been in. तो हेमंत जी, आप बताएं कि आपके हिसाब से एक अच्छा शेफ होने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी तो ये है कि पैशन, मतलब उसको अपने पे बहुत वो होना चाहिए, प्यार से खाना खिलाना. जैसे अपने कहते हैं घर पे आके कोई प्यार से खाना खिलाए, तो शेफ़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि प्यार से खाना खिलाए, प्यार से बनाए. और ये जो प्यार से खाना खिलाना और बनाना है, ये इनबॉर्न होता है या सीखा जा सकता है? ये इनबॉर्न होता है, पर धीरे धीरे अगर आप कोई देखे तो सीख भी सकते हैं लोग. तो आपका प्यार है भोजन के साथ, वो तो जाहिर है, और लोग उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसमें से न्यूयॉर्क पोस्ट ने ये भी कहा कि इंडियन क्रिएशंस दैट आर ओरिजिनल, कॉम्प्लेक्स एंड स्टीप्ड इन पावरफुल मिस्टीरियस करीज दैट स्टे इन योर माइंड फॉर डेज. तो आप एकदम मेमोरेबल बना देते हैं लोगों का खाना खाने का. हाँ, मेरा प्रयास यही रहता है कि जो लोग आएँ बिल्कुल उन्हें याद रहें. और इसके बारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ. कल एक हैमस्टर मेरे कस्टमर गेस्ट हैं, और ये वो जो मेरा 3-4 महीने पहले मेन्यू था, ही रिमेंबर दिस डिश ऑल्सो. तो मेरे को बोलते हैं कि आपने जो बनाया था लास्ट टाइम वो मेन्यू में वापस कब लेकर आ रहे हैं. तो दिस इज़ एक्चुअली गुड. मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि
कोई जिन्हें याद है डिश। नॉर्मली आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, आपने खाना खाया और फिर बाहर निकले आप भूल गए क्या खाया। मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार, लेकिन कोई जो अच्छी स्पेशल डिश है वो आपको ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। ज़िंदगी भर हमें क्या याद रहता है, क्या हम याद रखना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और इस बात को लेकर कि ज़िंदगी भर हमारा साथ कौन निभाएगा। कई बार तो क्या होता है, लोग रेस्टोरेंट में जाके ये डिसाइड करने में भी बहुत मुश्किल होती है हमको कि यार क्या मेन्यू होना चाहिए। एंड इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट एंड स्पेशली इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन हो। सो बोथ ऑफ देम कमिंग फ्रॉम सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड, हाउ दिस लव स्टोरी ब्लॉसम। तो पहले जैसे लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, तो सुरभि आप बताएं कि I was going to NYU for my masters and हेमंत आते थे वहाँ पे कुकिंग क्लासेस देने के लिए, तो हमारी मुलाकात वहीं हुई। उस वक़्त हेमंत टैमरिन खोल रहे थे और मैं अपने लिए एक फुल टाइम पेस्ट्री शेफ़ की पोजीशन ढूंढ रही थी। तो उन्होंने बोला कि हम टैमरिन टी रूम खोलना चाहते हैं, एक टी रूम का नया कॉन्सेप्ट। मिस्टर वालिया ने मुझे अप्रोच किया था उसको लेके, तो मैंने टैमरिन टी रूम ज्वाइन किया था। एंड देन हेमंत इंडिया गए और एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, बट वी गॉट मैरिड। तो वी मेट थ्रू एक्चुअली सुवीर, अगर आपको पता हो। जी। सुवीर ने मेरे को बोला करता था कि एक तेरे को मिलवाना है, तो हम ऐसे फिर NYU में उसने मेरे को मिलवाया। अच्छा, अब क्या होता है कि ये सब बार बार की बातें तो ठीक होती हैं, बट इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जो एक गाने में ऐसे आई थी कि जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, तो कैसे कहा था। तो आप दोनों ने पहले डिसाइड करके घर वालों को कहा था, आई थिंक दैट्स हाउ इट वाज। सो हाउ दिस डिसीजन वाज मेड? मैं दिल्ली गया है ना, इंडिया में गया, जब सुरभि के फादर मदर से मिला तो उस टाइम फैमिली देखी, बैकग्राउंड देखा, फिर उनको मैं अपने इंडिया अजमेर में घर में लेकर गया, सब घर वाले हम सब मिले। तो उसके बाद फिर वापस आया, फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई, क्योंकि आई वांट टू बी मैरिड विथ सेम प्रोफेशन या तो उसके बाद हमने डिसाइड किया फिर। तो ये जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हो जाते हैं, उसके बाद में वो स्थिति तो यहाँ वालों को फेस करने की आदत नहीं होती है कि खुद पकाए ही नहीं, क्योंकि वंस यू आर इन न्यूयॉर्क तो दोनों का रहता है। बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु हैव वेरी लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग, और वो डिपेंड करते हैं पूरी तरह से कि वही बनाती हैं। राम दुलारी मैके चली, और मैके चली तो मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, बाकायदा एजिटेशन जैसा हो गया। और इलेक्शन के दिन ऐसा लगा कि वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो वोट मांगते हुए जब हम अच्छा खाना खाने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो एक दूसरे को मनाते हैं कि ये खाना खाना ठीक होगा। एंड देन वी एंड अप फाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट समबडी मेंशन्स नहीं ये तो इतना ज़्यादा कैलोरी होगा और ये ठीक नहीं रहेगा। सो वी ट्राई एंड सी कि खाना टेस्टी भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हेमंत जी वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अ सिचुएशन कि दिस इज़ लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि वो जो ग्रेवी होती है वो कहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कैलोरी है। व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दैट? ग्रेवी एक्चुअली लो कैलोरी हम लोग जनरली बनाते हैं, लो कैलोरीज क्रीम और ये बहुत कम बटर यूज़ करें तो बन सकता है लो कैलोरीज़ का। लाइक गुड टाइप ऑफ ऑयल, ऑलिव ऑयल से खाना बनाएं आप तो कैलोरीज डेफिनेटली कम हो जाएगी। बटर का कम इस्तेमाल करें। लोगों की में धारणा है कि क्रीम और बटर डालेंगे खाना टेस्टी बनेगा, बट ऐसा नहीं है। तो खाना टेस्टी कैसे बनता है उसके बारे में आप कुछ और बताइएगा। बट कमिंग बैक टू यू, एंड स्पेशली जब हम पेस्ट्री की बात करेंगे तो नेचुरली कि भाई बहुत ज़्यादा कैलोरी, एंड यू आर पेस्ट्री एक्सपर्ट, तो पेस्ट्री में भी कोई ऐसी वैरायटी होती है जो कम कैलोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो? Actually, these days I'm working on doing a lot of vegan recipes. Not because of calorie conscious only, but otherwise also just exploring a new avenue for myself. तो आप काफ़ी अगर आप बनाना चाहें तो आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें आप सोया प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, आलमंड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, नट्स यूज़ कर सकते हैं, ऑल तरीके के हनी, अगावे, नेक्टर यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर स्ट्रेट फॉरवर्डली। और हमारे कई डिज़र्ट्स हैं जो ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, जैसे कि अगर आपने फिरनी बनाई है, आपने कोकोनट से बनाई है, कोकोनट मिल्क से इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिल्क या हैवी क्रीम या कंडेंस मिल्क, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल। बट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको यूज़ करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में। वैसे ही शेफ़ जो पहले कह रहे थे कि हम लोग अपने मेन्यू में जब डिशेस रखते हैं या हम
appetizers choose करते हैं या entree choose करते हैं, तो this is one of the things we think about. We think about textures, we think about some things need to be light, some things need to be heavy on the menu. If we have everything that's heavy, then there's not enough choice. So there are definitely items that you can find when you go out that are lighter, for तो sure. लाइटर की बात की तरफ आप से कोई लाइटर मोमेंट्स होते होंगे, कोई लोग खाना खाने के पहले डर जाते होंगे कि यार इतना खाना खा जाऊंगा, मेरे लिए क्या होगा. एंड देन यू ऑल्सो मीट मैनी पीपल हु आर लाइक इन हुज हु, जो आपके पास या तो रेस्टोरेंट में आते हैं या आप उनको सर्व करते हैं. एनी एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग समवन हु इज़ वेरी वेल नोन? Yeah, very well known. Lot of very known person like Mr. Advani came and he want light food, and after उन्होंने खाना खाया, उसके बाद उन्होंने एक तरह से मुझे ब्लेसिंग दी अच्छी तरह बुला के कि रियली आई लाइक वेरी गुड फूड. एंड अनदर ऑल्सो बिग पॉलिटिकल लीडर मिस्टर दिग्विजय सिंह ऑल्सो केम विथ एम्बेसडर. स्पेशली उन्होंने खाना खाने के बाद मेरे को बोला कि हेमंत, मैंने कभी खाना नहीं खाया और बहुत इंडिया से भी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे खाना. कार्ड में अपनी वाइफ के साथ अलग से आऊँगा. मैंने कहा ठीक है. ऐसे हॉलीवुड मुझे लगा ही था कि उनकी वाइफ साथ में नहीं होंगी, वरना कोई आदमी ऐसा कह नहीं सकता कि मैंने इतना अच्छा खाना कभी खाया हाँ. नहीं. तो और नॉर्मली जो हम लोग जैसे हम खाना बनाते हैं, आपने भी खाया होगा, तो लोगों का सिर्फ यही ध्यान रहती है आफ्टर लॉट ऑफ आई एम सेंडिंग स्मॉल पोर्शंस, सो बट दे फील डोंट नो हैवी. आई एम ट्राइंग टू मेक मेन्यू लाइक इन लाइटर डिशेज स्लोली एंड में थोड़ा सा आंतरे. तो बेसिक बात क्या है, हमने ऐसा सुना था कि 3 भ हिंदी भाषा में भोजन, भेष और भाषा, अगर ये तीनों हमसे छूट जाएंगे तो हमारी संस्कृति हमसे छूट जाएगी. सो इन सम वे हेमंत एंड पीपल लाइक हिम हु आर ऑफरिंग इंडियन फूड टू अस हियर, दे आर हेल्पिंग अस स्टेइंग इन कनेक्शन विद आवर कल्चर. उस तरह से आप देखें तो जो खाना आप बनाते हैं वो वैसा का वैसा बनाना पॉसिबल हो नहीं पाता होगा. डू यू गेट एग्जैक्टली द इंग्रेडिएंट्स दैट यू नीड टू कुक इंडियन फूड? पूरी कोशिश न्यूयॉर्क में हम करते हैं. न्यूयॉर्क में वैसे सब कुछ मिल जाता है, सारी चीज़ें फ्रेश है, स्पाइसेस भी अच्छे हैं, तो कंबाइन और मिक्सिंग करके मोस्टली वैसे ही बन मिलता है. लोग और काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट मेरे को इंडिया से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो मुझे बोलते हैं कि मुझे दिल्ली से अच्छा खाना मिला. तो दिस इज ऑल्सो गुड कॉम्प्लीमेंट्स. एंड हमारा तो कभी कभी सुरभि ऐसा होता है कि इफ़ यू हैव बीन इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, देयर आर सम कस्टमर्स हु आर वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, एंड देयर माइट बी सम सच एक्सपीरियंस विद यू वेयर यू फाउंड इट डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ द कस्टमर, और कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं. I think eventually, like, you have to learn the policy ki guest is God, right? So there's always a way around most customers, you know, until unless you have someone who's like had a really horrible day and there's not much you can do about it. Most people are like pretty normal, and you can always go up to them and approach them and say, hey, listen, I'm sorry if you didn't have the right experience. What can we do to make a difference? Sometimes if someone has sent you or emailed you a complaint, you can almost always call them back and they will come back. So ऐसा कभी नहीं हुआ कि, वैसे हमारे साथ इतना कोई बड़ा कंप्लेन कभी हुआ नहीं है, which is a good thing. That's a good thing. I'm not saying कि ऐसा हो ही हो, but there are chances. And also some people, the kind of food that they eat, उसका असर उनकी नेचर पर भी पड़ता है. आर यू अवेयर ऑफ इट? हालांकि ये आयुर्वेदा का सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाता है, बट स्टिल जैसे अगर कैसा खाना खाते हैं वैसी नेचर बनती है. डू दे टीच समथिंग लाइक दैट टू यू आल्सो इन योर कोर्सेज? अभी तक नहीं. वैसे थोड़ा 1-2 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, जो हमारी दोस्त नलिनी के साथ ही. उस समय उसने मुझे जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आयुर्वेदिक फूड एंड वी डिड ऑल्सो 2-3 डिनर्स, 2-3 मोर देन एक्चुअली 4 डिनर्स. दिस इज़ ऑल डिनर्स फॉर वेरी सक्सेस. और उस समय मैंने नेचर का बारे में पढ़ा था उनके साथ, और उस तरह से खाना भी बनाया हमने. काफ़ी लोगों ने उसे भी अप्रिशिएट किया नॉर्मल में. तो उस समय कोशिश करते हैं कि भाई उसमें ये मिक्स नहीं हो उसके साथ. तो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि खाने में क्या है उसके अलावा जो खाना बनाने वाला है वो खाना बनाते वक्त क्या सोच रहा है, दैट ऑल्सो वर्क्स इन मेकिंग योर नेचर. इट्स ट्रू. तो इस बात को लेकर मैं आपके पास आने चाह रहा था कि जो रेस्टोरेंट में आप टीम होती है, सो डू यू मेक सम
एक्स्ट्रा एफर्ट यस इन Yeah, मेकिंग yeah. श्योर कि लोग खुश हों, मतलब गुस्से से नहीं बना ये मेरा सबसे फर्स्ट प्रयास रहता है कि एवरीबडी का नेचर उस समय क्या कौन सा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको कौन सा काम देना है उसकी वो अच्छा करेगा. दिस इज ऑल इन माई माइंड. सो पीपल विल डू वर्क हैप्पीली एंड प्रोडक्ट कम गुड क्वालिटी. तो क्या होता है हेमंत के साथ एक पॉजिटिव बात यह है कि बहुत सारी बातें जो मुस्कुराते हैं उससे हो जाती है. सो वी शुड प्रॉब्ली ऑल्सो लर्न टू स्माइल मोर लाइक पीपल. कुछ लोगों का मैनेजमेंट होता है स्टाइल ये मुस्कुराने से काम हो जाता है. तो अब हम मुस्कुराते हुए सुरभि जी और हेमंत जी के साथ आपसे थोड़ी सी देर के लिए विदा लेते हैं. वी टेक दिस शॉर्ट ब्रेक.